Hello, watching CVR English News. This is Lana Patel. Welcome to Inside News. Now let's get into the details. Marking the death anniversary of former Chief Minister Sahib Singh Verma, former Haryana Minister Captain Abhimanyu offered heartfelt praise for Verma's contribution to the capital. Speaking at the prayer meet, Captain Abhimanyu highlighted Verma's pivotal role in laying the foundation for the Delhi metro system and his efforts to build deep-rooted trust among rural communities. He gifted Delhi with the metro system and instilled the sense of belonging among villagers, making them feel that the Delhi government was truly theirs. Abhimanyu remarked the gathering was a moment of reflection of Verma's enduring legacy and transformative impact on his leadership. उन्होंने दिल्ली ग्रामीण के एक गांव से चल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से दिल्ली के स्वरूप को बदलने का कार्य किया, दिल्ली को मेट्रो की सौगात दी और दिल्ली के गांव देहात को ये एहसास कराया कि दिल्ली की सरकार उनकी अपनी सरकार है। गांव देहात के पगड़ी पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले किसान मजदूर वह दिल्ली सचिवालय के कमरों में निडर होकर के स्वाभिमान के साथ में जा सके, इसकी शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने अपने कार्यकाल में की। शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर अपने आप में एक मील का पत्थर तो था ही, और जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि सहज सरल सामान्य व्यक्ति के तरह से अपने जीवन को जीते हुए वह भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे से ऊंचे पदों पर देश भर में उन्होंने काम किया। वही भारत के जो श्रम मंत्रालय के विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली तो उन्होंने रेहड़ी पटड़ी और कामगार और जो सामान्य जन थे और उसी कैबिनेट के अंदर जो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का जो उन्होंने रेगुलराइजेशन का काम शुरू किया, ये बहुत बड़ा नीति परिवर्तन कराया था। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको देख करके अपने आप को उनके साथ जोड़ते थे और अनेक कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे करके उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरणा दी। और आज वो सभी कार्यकर्ता उनके आशीर्वाद से वह देश और समाज की सेवा करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है और वह लगातार उनका जीवन में प्रेरणा देते हैं। उन्होंने Kongu Nadu Makhal Desi Khachi General Secretary KKR as Tamil Nadu speaking on matter. Ishwaram remarked as AIDMK says have agreed for the alliance government with BJP's but this will not offer stability for Tamil Nadu. His comments reflect ongoing political skepticism about the availability and cohesion of such alliances in the state's complex political landscape. This adds to be broader discourse on coalition dynamics ahead of future electoral battles. அவங்கள தான் கேட்கணும். ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுனாங்கங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒன்றிய அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்களும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் அவர்களுக்குள் என்ன பேசினார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தான் தெரியும். பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பிலே பேசுவதை பார்த்தால் கூட்டணி ஆட்சிக்கு இவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் என்பதை போலத்தான் தெரிகின்றது. ஆனால் அவர்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். கூட்டணி ஆட்சி ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் நாங்கள் சந்தேகிக்கிறோம். அது தேர்தல் நேரத்திலே வெளிப்படலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கூட்டணி ஆட்சி என்று வந்தால் நிலையான ஒரு ஆட்சி இருக்காது, ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்காது. நிலையான ஆட்சி ஸ்டேபிள் கவர்மெண்டாக இல்லை என்று சொன்னால் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கும். இந்தியாவிலேயே தமிழகம் பல துறைகளிலும் பல முனைகளிலும் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே நிலையான ஆட்சி இருந்ததுதான் காரணம். ஒரு பக்கம் கடின உழைப்பு, ஒரு பக்கம் எல்லா விஷயம் இருந்தாலும்
ஆனால் நிலையான ஆட்சி என்பது கண்டிப்பாக அவசியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் தமிழகத்திலே அமைவதற்கான அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி ஆட்சி என்றால் அது எப்படி இருக்கும் என்பதை பல மாநிலங்களிலே நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அது ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்டாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. கூட்டணியினுடைய தலைவர் அவர் அப்படி எடுக்க வேண்டும் இப்படி எடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த பழக்கம் எப்போதும் கிடையாது. கூட்டணிக்கு தலைமை ஏற்கின்ற கட்சி நாம் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும், ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தவாறு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம். அப்படி முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது அந்த முடிவுகளை ஏற்றுக்கொண்டு பணியாற்றி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அவருடைய சூழல், அவர்கள் பார்க்கின்ற பார்வை அது எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இதுவெல்லாம் கூட்டணிக்கு தலைமையேற்க அவங்கள தான் கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் என்ன பேசினாங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒன்றிய அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்களும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடி Marking the death anniversary of former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma's, BJP MP Manoj Tiwari paid heartfelt tributes at Swabhiyan's Tal. Reflecting on Verma's widespread influence, Tiwari remarked, Sahib Singh Verma ji was not only the respected in Delhi but across the NCR. Even today, people remember him fondly. He was not a remarkable personality, a leader deeply connected with the common people. He emphasized that Verma's legacy continues to live on in the hearts of the Dalits, as stating that the matter which concerned this Delhi to visit, people still talk about him. The ceremony brought together supports and admires to honor a leader known for his grounded leadership and enduring public connection. कि साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर सहित जो लोग उनको जान गया उनके दिलों में आज भी हैं। एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा नेता जिनके बारे में आज जब हम दिल्ली का सांसद होते हुए दिल्ली के किसी कोने में जाएं और खास तौर पे शादी विवाह में, तो लोग हमको साहिब सिंह वर्मा जी के बारे में बताते थे क्यों किस तरह से इतना प्रमुख पद पे रहते हुए लोगों से जुड़े रहते थे, लोगों के शादी विवाह से लेके। और मेरे लिए तो उनकी स्मृति इसलिए हुई बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हीं का दिया हुआ एक यमुना जी का, दिल्ली का, बल्कि पूरे देश का एक यूनिक और सुंदर ब्रिज जो तैयार हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज नाम है उसका, वो उन्हीं का दिया हुआ है 97 में जब वो मुख्यमंत्री थे और एक दुर्घटना हो गई थी। अब हम उस ब्रिज को उनके नाम से करने के लिए कागज आगे बढ़ाए हैं और मुझे लगता है कि दूसरों की सरकार रहते तो उनके कार्य को आगे ही नहीं बढ़ाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस ब्रिज को 29 बच्चों के शहीद होने के बाद उस ब्रिज को जो फंड दिया उसको 11 साल तक रोका रहा उन सरकारों ने जो उनके बाद आए। आपको 98 के बाद जो सरकार थी आपको याद ही है। उसके बाद 49 दिन की सरकार बनी, उसने भी उसका कोई काम नहीं किया। 2014 में जब हम सांसद बने, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमने उस ब्रिज को राष्ट्रपति शासन में बनाने का काम किया। अब उसका नाम हम उनके नाम से हो जाए इसके प्रयास में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार में हम ये कर लेंगे, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। जी देखिए, ये सरकार अपने नेताओं के सपनों को पूरा करने के लिए ही जानी जाती है और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र की जनता की इच्छा है और वो पूरा होगा कि साहिब सिंह। NCP as leader Rohit Pawar addressed the media over the Maharashtra government's decision to react the government resolution related to the 3-language policy in education. The LGR had stated that Hindi would generally be considered the third language in schools. Pawar questioned the rashness behind revoking the order, expressing concerns over the lack of clarity and consistency in educational policy. He emphasized the importance of linguistic inclusivity and suggesting that the language decision should be based on educational merit and regional relevance. Rather than political calculations, the issue has sparked fresh debate about the role of language in school curriculum across the state. एक तर तो डाव नव्हता
मराठीच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी उद्धव ठाकरे साहेब आणि राज ठाकरे साहेब तसंच त्यांना पाठिंबा देणारे इतरही सर्व पक्ष, ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष असेल, काँग्रेस असेल, इतर छोटे मोठे सर्व पक्ष असतील, अनेक सामाजिक संघटना, हे सर्वजण मिळून 5 तारखेला मुंबईमध्ये एक मोठा मेळावा, एक आंदोलन त्या ठिकाणी घेणार होते. पण हे सरकार घाबरलं. सरकारने हिंदी सक्तीचा जो GR होता तो काल घाबरून मागे घेतला. मग कुठेतरी आपल्या सर्वांना म्हणावं लागेल, मराठी माणूस स्वतःच्या हितासाठी जेव्हा एकत्रित येतो, स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी एकत्रित येतो, तेव्हा मराठी विरोधात असणारे लोक, महाराष्ट्राच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांना माघार ही घ्यावीच लागती. ही काल आपल्या सर्वांना तिथं बघावं लागलं. त्यामुळे दिल्लीवरचा जो आदेश आला होता आणि तो GR मध्ये कन्वर्ट करून तो त्या ठिकाणी लागू केला होता, तो काल खऱ्या अर्थाने मागे घेतला. मग मराठी माणसांचा तो विजय आहे. पण याच्याच बरोबर खास करून मराठी मीडियाचे, पत्रकारांचे मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. ते सुद्धा मराठीच्या बाजूली राहिले, महाराष्ट्राच्या बाजूली राहिले आणि एक चांगली पत्रकारिता ठराविक वगळता सर्व मराठी पत्रकारांनी चांगली पत्रकारिता ही अख्ख्या देशाला दाखवून दिली. यासाठी त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. फक्त विनंती एवढीच आहे, 5 तारखेला उद्धव ठाकरे साहेब विजय सभा घेण्याचा विचार त्या ठिकाणी करत आहेत. राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा त्या सभेसाठी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचा तो कार्यक्रम नसला तरी एकत्रित येऊन ती विजयाची सभा ही घ्यावी असं आमच्यासारख्याला सुद्धा त्या ठिकाणी वाटतं. At a solemn prayer meeting held in Delhi, Minister Kapil Mishra paid tribute to former Chief Minister Sahib Singh Verma on his death anniversary. Addressing those who gathered, Mishra remarked, "Today marks the death anniversary of respected Sahib Singh Verma ji, and entire Delhi remembers him with deep respect. The occasion brought together political leaders, supporters and well-wishers who fondly recalled Verma's contribution to the capital of his enduring legacy in public service." आज आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली उन्हें आज भी याद करती है, उनके प्रशासन के लिए, उनकी सहजता के लिए, उनकी सरलता के लिए, और जो उनकी रखी हुई नींव थी उसी में आज की हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उसी नींव पर निर्माण का कार्य कर रही है. ऐसे बिरले ही नेता होते हैं, बिरले ही व्यक्ति होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, आज ये जो हजारों हजार लोग हम आज भी उनके जाने के इतने बरसों बाद भी देख रहे हैं, ये बताता है कि उनका क्या व्यक्तित्व था और समाज का उनसे कितना प्रेम. आज आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली उन्हें आज भी याद करती है, उनके प्रशासन के लिए, उनकी सहजता के लिए, उनकी सरलता के लिए, और जो उनकी रखी हुई नींव थी उसी में आज की हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उसी नींव पर निर्माण का कार्य कर रही है. ऐसे बिरले ही नेता होते हैं, बिरले ही व्यक्ति होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, आज ये जो हजारों हजार लोग हम आज भी उनके जाने के इतने बरसों बाद भी देख रहे हैं, ये बताता है कि उनका क्या व्यक्तित्व था और समाज का उनसे कितना प्रेम. आज आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली उन्हें आज भी याद करती है, उनके प्रशासन के लिए, उनकी सहजता. At an emotional prayer gathering commenting the death anniversary of the former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma, his son and Delhi Minister Parvesh Verma expressed heartfelt gratitude to attendants. He recalled the strategic accident that claimed his father's life 18 years ago and shared how the family struggled in its aftermath. The conditions of the family and the mind was bad then it became the possible because of you, he said, acknowledging the support they received during difficult times. He also recounted a patient's movement from the accident, noting that one of 3 others in the vehicle has pleaded with the bystanders to save Sahib Singh Verma in his final moments, underscoring the deep emotional bond people shared with the late leaders. मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से
आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई अगर शक्ति है, आशीर्वाद है, तो वो आप सभी का है। मैं हमारे बीच में रसराज महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भजन के माध्यम से हम सबको ईश्वर के साथ में जोड़ा और आज हम हमारे नेताजी के साथ में 3 और व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति ही जो उनके साथ में उस दिन गाड़ी में थे, एक उनका चालक था बबलू और एक उनके पीएसओ थे जगबीर और एक यहां पर साथ के गांव में सुरेश नाम के व्यक्ति थे। हमें जब ये सूचना मिली और उसके बाद में जब मैंने पता किया कि क्या हुआ था, तो मुझे आसपास के ग्रामीण लोगों ने और बाद में जो सूचना मिली उसमें बताया, A man accused of multiple highway robberies and murder charges was shot dead in the encounter with police in Uttar Pradesh, Bhagpet district. According to officials, the accused had allegedly opening fire on the police during a last night chase, prompting relationary action. He was critically injured and later submitted to his injuries. Authorities stated that the individual has several criminal cases lodged against him and was considered a menace to public safety. Further investigations are underway. इसको एसटीएफ नोएडा यूनिट और जनपद बागपत पुलिस के द्वारा एक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके ट्रक सहित सभी सामान लूट लेने के गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का वांछित इनामिया संदीप पहलवान और संदीप लोहार घायल हुआ और इसको प्रारंभिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक विधिक कार्य इसको एसटीएफ नोएडा यूनिट और जनपद बागपत पुलिस के द्वारा एक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके ट्रक सहित सभी सामान लूट लेने के गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का वांछित इनामिया संदीप पहलवान और संदीप लोहार घायल हुआ और इसको प्रारंभिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक विधिक कार्य इसको एसटीएफ नोएडा यूनिट और जनपद बागपत पुलिस के द्वारा एक Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis says we have made 3 new laws in our criminal justice system. The IPS has been acknowledged and this is a change, but we have not done the indices of these laws. On one side, in our constitution, which is the greatest in the world, and the constitution, which has evolved by many decisions of courts in our fundamental value. Along with this, we must adapt ourselves to encounter the evolving challenges. हमारी जो सारी सिस्टम है उस सिस्टम में भी काफी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था अब वो न्याय संहिता में बदला गया है। हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें,
उसमें विश्वास लोगों का बढ़ा है। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीजें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो विश्वास होता है, उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। उस सिस्टम को बदलने का काम अब ये 3 कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेजी भी आएगी, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन भी उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स अब इन नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसमें पारंगत होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इन नई सिस्टम्स के साथ एक बदलती हुई जो हमारी दुनिया है, उस दुनिया में हमारे सारे स्टूडेंट्स कदम रखने वाले। आज हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से हम जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, इसका भी रिजोल्यूशन फास्ट हो, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड है। क्योंकि हमारे जो निवेशक हमारे यहाँ आते हैं, उन निवेशकों की सबसे बड़ी जो एक मांग होती है वो ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट जब तैयार होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट तैयार होता है, तो उसको न्यायपूर्ण पद्धति से उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए और कम से कम समय में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और इस पर हमारा जो रैंकिंग होता है, उस पर हमारे निवेशक हमारे देश में निवेश करें या न करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। इसलिए ये सारी जो बदलती हुई सिस्टम्स है, इसके अनुरूप हमारे जो अधिवक्ता है, उनकी ट्रेनिंग, उसके अनुरूप उनका एक्सपीरियंस, ये भी बिल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जहां एक और हमारा संविधान है, जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की अगुवाई में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको मिला है, और जो संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से इवॉल्व हुआ है, वो हमारा शाश्वत मूल्य है। उस शाश्वत मूल्य के साथ बदलती हुई दुनिया के जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर ब्रीचेस ये बहुत बड़ी चुनौती है। Odisha Law Minister Prithviraj Himachand stated that the Mahapur grants a darshan to devotees according to his own wish, and that the faithful would get an opportunity to offer prayers the next day, as he had prayed for everyone's well-being. Referring to the Puri Rath Yatra stampede, he described it as every unfortunate, noted that the state government had taken strict action and announced that a senior officer would probe the incident and action would follow once the reported arrived. महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का लीला अपरंपार है। जैसे हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहा हूं कि महाप्रभु अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए रथ पे विराजमान होते हैं और रथ में विराजमान होते हुए अपनी जन्म वेदी तक आते हैं। आज महाप्रभु खुद यहाँ आए और विराजमान अभी करेंगे अपनी जन्म वेदी पे। कल से भक्तजनों आएंगे, बहुत श्रृंखला के तरीके से सबको दर्शन मिलेगा, सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे आज के ये अवसर पे महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पास मेरा प्रार्थना है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र और मां सुभद्रा पूर्ण रूप में समग्र विश्व का कल्याण के लिए आशीर्वाद करें, सबको ये आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका जीवन सुखमय हो। ये अवसर में भगवान जी के पास मेरा ये प्रार्थना है। इस बारे में सुबह का जो घटना घटित हुआ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में सरकार की तरफ से हमको जो कदम उठाना था, हम ये कदम उठा चुके हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन का दायित्व एक सीनियर ऑफिसर को दिया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ जाए, फिर जो करना है।
Union Minister and West Bengal BJP President Sukanta Majumdar asserted that law and order in the state had reached a sovereign's level and held Mamata Banerjee responsible for repeating violence against women in West Bengal. He announced that a martial resource as a torchlight protests as would take place in the evening and all the BJP workers would presently challenge the government, even risking arrest until accountability was enforced for the alleged Kolkata's gang rape. देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है ये दर्शाता है, क्योंकि नहीं एनसीडब्ल्यू का टीम आया है, उनको रोका गया है। हाँ, एकदम इसको तो बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happen. तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है, इट इज टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बैठे रहेंगे तो आगे आने वाले समय में बंगाल की महिलाओं के साथ एक के बाद एक ऐसी घटना घटते जाएगी। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि आप 3 बार गिरफ्तार हुए बॉन्ड पेपर पे सही कराने का, पर कल पुलिस ने आपके सामने घुटने टेका। आज सुबह आप रिहा हुए, दिन भर व्यस्त शेड्यूल है। पुलिस तो कल रात ही हमें हाथ जोड़ रही थी कि सर आप घर जाइए घर जाइए घर जाइए। हमने तय किया था नहीं, हम बॉन्ड पे साइन करके घर नहीं जाएंगे। ये जो हर रोज हमको उठा के लाना और बॉन्ड साइन करके भेजना, हम पर्सनल बॉन्ड में कल बोल दिया था पुलिस को कि आप पर्सनल बॉन्ड में हम साइन नहीं करेंगे, आपको जितना मर्जी रखो कोर्ट में पेश करो। बाद में पुलिस पीछे हटा और इसके हम बेल नहीं लेंगे, इस मोटिव के साथ कल पूरी रात हम लाल बाजार में रहे, वहाँ पे बैठे रहे बेंच पर और आज सुबह हम 7:30 बजे वहाँ से निकले। सब होगा, आज शाम को मशाल जुलूस होगा, टॉर्च लेकर हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता निकलेंगे जगह पे। Well, this is the wrap of the Inside News. For more news updates, stay tuned to CVR English News.